السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بعدد کل ذرہ مئۃ الف مرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو سنوار کر خوبصورت کر کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح فرماتے ہیں، ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل ہے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کا طریقہ جاننا۔ تو الحمدللہ ہم نے پیچھے مکمل سلیبس تجوید و قرات کے نام سے آن لائن ہم نے الحمدللہ تقریباً 112 اسباق میں ہم نے وہ الحمدللہ پورا سلیبس پڑھایا تھا، کورس مکمل کیا تھا۔ تو اب میں دوبارہ ہم نے اس کی کچھ اجرا اور کچھ درس قرات، جو کہ میری ہی لکھی ہوئی کتاب ہے السعی الرشید فی علم التجوید، عرف عام میں اس کا نام ہے درس قرات۔ اور یہ اس کا جو ابتدائی طور پہ یہ میں نے اس کا جو مقدمہ ہے، اس میں سے ہمیں کچھ سمجھ آ جائے گی، اس کا تعارف ہو جائے گا۔ دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین والمعصومین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ زیر نظر کتاب سعی الرشید فی علم التجوید المعروف درس قرات پیش کرنے کا ذریعہ یہ ہوا کہ چند سال قبل، تقریباً یہ 1991 کی بات ہے، مدینہ منورہ میں حاضری کے موقع پر ایک عربی کتاب علم التجوید کے نام سے دیکھنے کا موقع ملا، جو کہ دور حاضر کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب کے قراء اعظام کے ایک بورڈ نے مرمت کی تھی، اور وہ وہاں کے مدارس میں جو سکولز ہیں ان میں 6 سے لے کر 10ویں تک 5 جلدوں میں وہ کتاب مجھے میری نظر سے گزری۔ دوران تذکرہ وہاں پہ میرے برادر محترم مکرم ساکن مدینہ منورہ عاشق صادق دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا قاری حافظ محمد یونس رحمۃ اللہ علیہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس قسم کی کتاب اردو میں بھی مرتب ہو جائے تو جدید دور کے تقاضوں کی ایک ضرورت پوری ہونے میں مدد ملے گی۔ بندہ نے اسی وقت اس کام کا مدینہ منورہ میں ہی ارادہ کیا اور رب العزت کے حضور دعا کی، اور ساتھ ہی بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں نگاہ کرم کی درخواست کی اور اس پر کام شروع کر دیا۔ پہلے تو ارادہ تھا کہ علم تجوید عربی مکمل 5 جلد کا ترجمہ کر دیا جائے، لیکن اپنے ماحول کی تعلیمی ضروریات، کیونکہ وہاں پہ عربی ماحول ہے، یہاں پہ عجمی ماحول ہے، ان کی مادری زبان ہے، تو جو ہماری ضروریات ہیں وہ ان کی نہیں تھیں، تو میں نے اپنے ماحول کی تعلیمی ضروریات کے پیش نظر کہ ترجمہ کی بجائے مفہوم کو اپنانے
اور کچھ ترامیم اور کچھ اضافے کے بغیر مطلوبہ مقاصد پورے نہ ہو سکتے تھے، لہذا اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا لحاظ رکھا گیا اور اس کے لیے کچھ اور مستند کتب کا سہارا بھی لیا گیا، جس کا حوالہ بھی دے دیا گیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں اپنے برادر اکبر حضرت مولانا قاری محمد عبد الرشید قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فاضل جامع شفیع لاہور سے درخواست کی کہ آپ میری اس سلسلہ میں مدد فرمائیں۔ انہوں نے اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود بھرپور تعاون فرماتے ہوئے عربی تراجم کو ان کی روح کے مطابق اردو میں منتقل کرنے میں میری مدد فرمائی اور ساتھ ہی مفید مشروع سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان کی سعادت دارین سے ان کو نوازے، آمین۔ کوشش کی گئی ہے کہ اس کاوش کے ذریعہ سے علم تجوید کے مسائل احسن اور آسان پرائے میں ہدیہ ناظرین و قارئین ہوں۔ اس سلسلہ میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے، اپنی رائے سے اور میری کمزوریوں سے مجھے آگاہ فرمائیں تو مشکور ہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی قرآن کریم کی درس و تدریس اور اشاعت نو کو قبول فرمائے، آمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ آخرت کے لیے ایمان کی سلامتی، قبر و حشر میں بخشش و مغفرت، اور میرے اور اپنے بزرگوں اور میرے والد گرامی اور اپنے مرحومین کے لیے میرے والد گرامی حضرت مولانا خواجہ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور میرے اجداد کی بخشش، اپنے اجداد کی بخشش، اور میری والدہ مکرمہ محترمہ کے لیے جن کی دعاؤں کی تحائل یہ عادت شرق و غرب میں حرکت کرتا رہتا ہے، صحت و تندرستی اور توانائی کے لیے دعا فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ پچھلے کچھ سالوں میں میری اہلیہ مرحومہ مغفورہ اور میری ہمشیرہ کا بھی انتقال ہوا، اور بھی ہمارے جتنے محب اور ساتھی اس دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ اور ساتھ ہی یہ آج کل یہ جو وبا ہے کورونا کی، اس کے اختتام کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ انسانیت کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام احباب کے لیے بھی جنہوں نے دامے درم قدم سخن معاملت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی سعادت درین کو، ان کو سعادت درین عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب ہم کتاب کھولتے ہیں۔ راجہ صاحب، حاجی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی قبلہ، ٹھیک ہے جی۔ حاجی صاحب کو بھی آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے السلام پہلے ہم علیکم۔ ایک دفعہ درود شریف پھر پڑھ لیں، کیونکہ کتاب شروع ہو رہی ہے، تو ایک دفعہ درود شریف پھر پڑھ لیں اور ساتھ دعا مانگ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم علم تجوید کی ابتدائی باتیں جو ہیں ان کے اوپر ہی کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آج تو پہلا دن ہے تو سیٹنگ وغیرہ ہی ہوگی، انشاءاللہ کل کو ہم یہ دوبارہ پڑھیں گے، اور کل سے یہ ہماری جو اسباق ہیں یہ براہ راست یہ فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر آن لائن جائیں گے، تو اس لیے انشاءاللہ کل ہم دوبارہ یہی چیزیں دیکھیں گے۔ آئیے تو آج ابھی ہم علم تجوید کی ابتدائی باتیں۔ تجوید کا لغوی معنی پچھلی بکس میں اسباق میں ہم نے پڑھا ہے کہ تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، خوبصورت کرنا، سنوارنا، میک اپ۔ یہ ہماری زبان میں ہے اس کا معنی خوبصورت کرنا یا عمدہ کرنا، اور تجوید کی لغت عرب میں، تجوید کو لغت عرب میں ہر کام اور ہر قول یا بات کو کی مضبوطی اور عمدگی کو کہتے ہیں، یعنی خوبصورت بات، خوبصورت کام، عمدہ گفتگو، اس کو عربی میں لغوی معنی اس کا ہے تجوید۔ یہ تو سمجھ میں آ گئی ہے، کسی چیز کو بھی خوبصورت بنانا، اچھا بنانا، اس کو اس کی کوالٹی کے ساتھ سامنے پیش کرنا،
कहते हैं ना कि जी इसकी अच्छी क्वालिटी है, बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, बड़ा मजबूत है, इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो इसको तजवीद कहते हैं। और तजवीद, अब वैसे तो हर काम जो भी अच्छा हो उसको तजवीद ही कहते हैं, लेकिन अब ये चूंकि एक इल्म की शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो ये इल्म तजवीद का ताल्लुक अब ख़ास तौर पर कुरान करीम के साथ ही इसको समझा जाता है। जब भी कोई तजवीद का लफ्ज़ बोलेगा तो सबके ज़हन में ये बात आ जाएगी कि ये कुरान करीम की बात जो है वो करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे सियालकोट में हमारे मदारे अदारे का नाम है दारुत तजवीद वल कुरान, या जहाँ पे हम पढ़े हुए हैं उस मदरसे का नाम है तजवीद उल कुरान। तो फ़ौरन समझ आ जाता है कि लफ्ज़ तजवीद का ताल्लुक जो है इसका कुरान करीम के साथ ताल्लुक है। तो जब हम देखें ना, तो कोई ये कहेगा मैं तरतील पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो तरतील भी वही चीज़ है, क्योंकि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है तरतील क्या है, हुवा तजवीदुल हुरूफ़ी व मारिफतुल वुक़ूफ़। तो तरतील की तशरीह ही तजवीद है। तो इल्म तजवीद मारूफ हो चुका है इल्म क़िराअत और इल्म कुरान करीम के असलूब व ज़वाबित और क़वाइद को समझने समझाने और उसके ऊपर अमल करने के लिए इसका नाम है, इस इल्म का नाम है इल्म तजवीद। आइए अब ये तसल्लुक़वी माना और तजवीद का इस्तिलाही माना, जो कि हमारे जो तजवीद के तलबा हैं या तजवीद के असातिज़ा हैं या तजवीद के उलमा हैं या इल्म तजवीद के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो तजवीद का माना क्या करते हैं। कुर्रा की इस्तिलाह में, उलमाए तजवीद की इस्तिलाह में, तजवीद कहते हैं हर हर्फ को उसके मखरज से उनकी सिफात और दीगर लवाजमात मद, गुन्ना, इजहार और इदगाम वगैरह के साथ अदा करना। पिछली किताब में हमने इसकी तजवीद इतनी ही पढ़ी थी। तजवीद कहते हैं हर हर्फ को उसके मखरज से निकालना और उनकी सिफात को उनकी तमाम सिफात लाजिमा और आर्जा के साथ अदा करना। अब सिफात लाजिमा के ज़िमन में तो आ गया दीगर लवाजमात, और साथ ही सिफात आर्जा के अंदर आकर आगे मद, गुन्ना, इजहार और इदगाम वगैरह, ये सिफात आर्जा आ गई। दीगर लवाजमात में क्या है कि हरूफ को उनके मखारज से निकालना, जहाँ से हरफ का निकलने की जगह मुअय्यन है, उसका तयन है कि यहाँ से निकलेगा, तो उसी मुकाम से उसको निकालना, ये है तजवीद के लवाजमात, मखारज और सिफात। और मखारज के तफसील भी आगे आएगी। और सिफात से मुराद यहाँ से वो सिफात भी हैं कि जिनके बगैर हरफ मुकम्मल ही नहीं रहता, और वो सिफात भी हैं कि जिनके बगैर हरफ मुकम्मल तो होता है लेकिन उसका हुस्न ज़ीनत नहीं रहता। तो यहाँ पर दोनों को इहाता कर लिया गया है, दोनों का। जो सिफात लाज़िमा हैं, जैसे आ गया दीगर लवाजमात, और जो सिफात आर्ज़ा हैं जैसे मद, गुन्ना वगैरह, इदगाम वगैरह। तो ये तजवीद का इस्तिलाही माना जो इस किताब में है वो इस तरह है कि इस्तिलाह में तजवीद कहते हैं हर हर्फ को उसके मखरज के, उनकी सिफात, हर हर्फ को उसके मखरज से और उनकी सिफात और दीगर लिहाजमात, ये जो है ना उनकी सिफात, इससे मुराद है सिफात लाजिमा, और दीगर लिवाजमात से मुराद है सिफात हारजा, जिनमें मद भी है, गुन्ना भी है, इजहार वगैरह है और इदगाम वगैरह के साथ अदा करना। जी नजर आ रहा है राजा साहब, राजी साहब? जी 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 किबला, नजर आ रहा है। ठीक है जी। अब आगे आइए, तजवीद की इस्तिलाही किस्में, इल्म तजवीद की इस्तिलाही किस्में। इस्तिलाह में तजवीद की दो किस्में हैं। नंबर एक तजवीद इल्मी, नंबर दो तजवीद अमली। ये आप अल्फाज से ही समझ गए होंगे कि तजवीद इल्मी से क्या मुराद है और तजवीद अमली से क्या मुराद है। देखिए, तजवीद इल्मी ये है कि आदमी
तजवीद इल्मी ये है कि तजवीद के अहकाम की मुकम्मल तालीम हासिल करना और उनको अच्छी तरह समझना, और अहकाम तजवीद जैसे हरूफ के मखारज, उनकी सिफ़ात लाज़िमा के और फिर मखारज के अंदर भी जो मुख्तलिफ आरा हैं उलमाए क़िरात की, किसी के नज़दीक 17 हैं, किसी के नज़दीक 16 हैं, किसी के नज़दीक 14 हैं। और सिफ़ात लाज़िमा इसकी 2 किस्में हैं, सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिज़ा। लाज़िमा की फिर 2 किस्में हैं, सिफ़ात मुतज़ादा और सिफ़ात गैर मुतज़ादा। तो सिफ़ात लाज़िमा में शामिल होंगी जैसे शिद्दत और जहर, रिख़वत और हमस और जहर, शिद्दत और रिख़वत, इस्तिरार, इतबाक़, इज़लाक़, इंफ़िताह, इतबाक़ और इंफ़िताह, इज़लाक़ और इस्मात वग़ैरह। और सिफ़ात गैर मुतज़ादा में गुन्ना, सफ़ीर, मुशाबत, तकरार और तफ़श्शी और अलक़ला वग़ैरह। और सिफ़ात आर्ज़ा में इज़हार और इदगाम वग़ैरह और दीगर ज़ूरियात जिनमें कुरानी कलिमात के आखिर पर वक़्फ़ करना, यानी इल्म रस्म, इल्म औक़ाफ़। तो ये जो बंदा इसको मुकम्मल हासिल करता है, यानी इसके सिलेबस को मुकम्मल पढ़ता है और सिलेबस को मुकम्मल पढ़ने के साथ साथ उसका इजरा भी करता है, और इजरा के साथ साथ फिर पूरा कुरान करीम उस्ताद को सुनाता है, और फिर उसको पूरा पढ़ाने के बाद इम्तिहान लिया जाता है, और फिर उसमें वो कामयाब होता है तो फिर उसको सनद जारी की जाती है। तो जब ये तजवीद इल्मी से बंदा बाहर निकलता है तो उसके बाद उसकी कैफियत ये हो जाती है कि उसके पास ये एक अथॉरिटी होती है कि वो किसी बंदे की गलती की तस्हीह भी कर सकता है, और किसी बंदे को ये आगे इजाज़त भी दे सकता है। जिस तरह इल्म हदीस के लिए इजाज़त की ज़रूरत है, इसी तरह इल्म तजवीद के लिए भी इजाज़त की ज़रूरत है। इल्म हदीस के अस्मा और रिजाल, और फिर उसके बाद ये सनद चलती है। जो बंदा भी इस दौर से भी चलेगा तो उसने कहाँ से सीखा, उसने कहाँ से सीखा, उसने कहाँ से, ये चलते हुए आखिरी जो कड़ी है वो जनाब रसालत माब अलैहिस्सलातु व तस्लीम प्यारे आका के साथ मिलती है। इसी तरह इल्म तजवीद के अंदर भी यही है कि मैंने अपने उस्ताद से पढ़ा, उन्होंने अपने उस्ताद से पढ़ा, चलते 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 ये सनद के अंदर वो सारे अस्मा जो हैं वो मुदरज होते हैं, और वो बंदा जो है वो आगे अथॉरिटी रखता है कि आगे किसी बंदे को ये इजाज़त दे कि अब आप बैठकर मसनद इरशाद उस्ताद की जगह पर बैठकर पढ़ाने की आपको इजाज़त है। ये इल्म तजवीद इल्मी के बगैर ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा कोई बंदा भी जो कुरान करीम की तालीम देना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो इल्म तजवीद इल्मी का वो माहिर हो। इसी तरह जो मसनद इमामत पर है, मसनद खताबत पर है, उनके लिए भी ज़रूरी है कि तजवीद इल्मी उसको पता चले कि खता कहाँ पे है, क्योंकि अगर वो ऐसी खता करेगा कि उसकी खता की वजह से मानी में बिगाड़ आए, और जब मानी में बिगाड़ आएगा तो नमाज फासद होगी। जब वो मसनद इमामत में हैं तो फिर अगर उसकी नमाज ख़राब होगी तो पीछे जो मुसल्ली हैं उनकी नमाज भी ख़राब होगी। तो ये तजवीद इल्मी जो है इसकी बहुत ज़रूरत है। अब आइए आगे है तजवीद अमली। तजवीद अमली ये है कि कुरान करीम को तरतील के साथ और दुरुस्तगी के साथ पढ़ना। ये अपने हद तक ठीक है कि आदमी अच्छा पढ़ता है, खूबसूरत पढ़ता है, मेहनत करता है, और उसको यानी वो उसी तरह पढ़ता है तजवीद अमली। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात ने सहाबा किराम से जिस तरह रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और ताबीन और क़िरात के इमामों ने जिस तरह पढ़ाया है, इसी तरह उसने अपने उस्ताद से पढ़ना है। तो तालिब इल्म पर क़वाइद तजवीद के अहकाम और उनकी अमली मश्क़ के दौरान लाजिम है कि अपने उस्ताद मोहतरम से कुरान मजीद की आयात करीमा से जो कुछ सुने
तजवीद और हरूफ की दुरुस्तगी का लिहाज रखते रखते बार बार दोहराए और इस क़िरात के पूरे हकूक़ अदा करे। याद रखिए, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं होता जब तक वो ऐसे उस्ताद से ना पढ़े जो कि तजवीद का आलिम हो, जिसको तजवीद के असूल व ज़वाबित का। अब कुरान करीम में बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जो लिखे हुए हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जो पढ़े हुए हैं जो लिखे नहीं जाते। मसलन आप देखें कि कुरान करीम में बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं कि जो लिखे हुए हैं पढ़े नहीं जाते। अब कैसे पता चलेगा कि इनको नहीं पढ़ना है? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कुरान करीम में कोई भी खाली हरफ कि जिसके ऊपर ज़बर भी ना हो, ज़ेर भी ना हो, पेश भी ना हो, जज़म भी ना हो, शद भी ना हो, खड़ी ज़ेर, खड़ी ज़बर, उल्टी पेश, तनवीन वगैरह भी ना हो, यही है ना? यानी ये जो रमूज हैं, ये ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश, जज़्म और शद, अगर किसी हरफ के ऊपर ये नहीं है तो कुरान करीम में वो पढ़ा नहीं जाता। हाँ, अलिफ एक ऐसा है लफ्ज़, अलिफ एक ऐसा हरफ है कि उससे पहले वो खाली है, लेकिन अगर उससे पहले ज़बर हो तो वो पढ़ा जाता है। इसके अलावा और कोई हरफ जो है वो पढ़ा नहीं जाता। देखिए, अब अकीमुस्सला, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि अकीमू की वाव जो है उसके ऊपर कुछ नहीं है, और वाव के बाद एक अलिफ भी है। एक अलिफ तो वो है जो लाम से पहले है, एक वाव के बाद है। अब जो वाव के बाद है वो नहीं पढ़ा जाएगा, ना वक़फ़ में ना वसल में। लेकिन अगर अकीमू पर ठहर जाए तो जो अस्सलात का अलिफ है वो पढ़ा जाएगा, लेकिन उसको लाम तारीफ का गिना जाएगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये तजवीद पढ़े बगैर समझ नहीं आती। तो ये यूँ समझ लीजिए, कुरान करीम में बहुत से हरूफ ऐसे हैं जो लिखे हुए हैं, पढ़े नहीं जाते, और बेशुमार ऐसे भी हैं जो लिखे हुए हैं लेकिन लिखे हुए नहीं हैं लेकिन पढ़े जाते हैं। मिसाल के ऊपर, अब खड़ी ज़ेर या की आवाज़ है, यहाँ हरफ तो कोई नहीं है ना, तो ये हमारे अजमियों को समझाने के लिए खड़ी ज़ेर, उल्टी पेश, खड़ा ज़बर, अब ये लिखे हुए नहीं हैं। अब कई जगह ऐसी हैं लिखी हुई है, या पढ़ा जाता है अलिफ, जैसे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। तो ये चीज़ें इल्म तजवीद के बगैर नहीं आती, और इल्म तजवीद के जो असातिज़ा हैं जो इससे माहिर हों, जब उनसे कोई तालिब इल्म कुरान करीम पढ़ेगा, कुरान करीम सीखेगा, यकीनन फिर वही कुरान करीम सही पढ़ने के लायक है। तो इसलिए ये हमने तजवीद की दो किस्में की, एक है तजवीद इल्मी और एक है तजवीद अमली। इंसान को अपनी ज़ात के लिए कुरान पाक पढ़ने के लिए, और उसने किसी अच्छे उस्ताद से पढ़ा हो तो उसके लिए ये काफ़ी है कि अच्छे उस्ताद से पढ़कर वो पढ़ सकता है कुरान करीम। ये तजवीद अमली है। अगर वो इसके साथ साथ कुछ इल्म भी हासिल कर ले तजवीद का, तो ये सोने पर सुहागा है। लेकिन जिस शख्स ने कुरान करीम की टीचिंग करनी है, दरस व तदरीस करनी है, चाहे वो तर्जुमा पढ़ाना है, चाहे वो तफसीर करनी है, या उसने कुरान करीम की तिलावत किसी को करानी है, नमाज पढ़ानी है, तो उसके लिए तजवीद इल्मी भी ज़रूरी है और तजवीद अमली भी ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने ये आगाज़ किया है, अल्लाह के नाम से आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह ये दर्स क़िरात अल्लाह के फज़ल व करम से हम मुकम्मल करेंगे इन अय्याम में। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल को हम यही दोबारा गुफ्तगू करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।